सो हे गाइस, दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 ऑफ इम्प्रूविंग इंग्लिश। और आज एक लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं जिसमें सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन जो है उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो रैंडमली कोई भी मॉक टेस्ट उठा लेते हैं, ठीक है। एंड इसमें पहले इंग्लिश का सेक्शन मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में देखेंगे कि क्या सोल्यूशन है। कोशिश करेंगे कि मार्क्स जो है वो अब वो 40 रहे। ओके, सो नेक्स्ट लैंग्वेज। English. I'm ready to begin. Okay, सिर्फ इंग्लिश का जो है पोर्शन वो करने वाला हूँ। Shani was scrolling down the phone. When her friend arrived, they went to market. Marketplace was thronging with people. Shani was scrolling. Her friend bought a boutique. Arrived, they went to market. A, C, D, P. Okay. Cut a poor figure in a poor state. Put a bad impression. 2000 study explored forward thinking techniques to synchronize time on board deep space probe in accurate navigation, in particular looking into low-cost PQRS. Okay, next. The indentured laborers fix the road. The road fix है ना, were roads was the roads are fixed. नहीं, fix है, roads are fixed by. ठीक है. The evil king was defeated by Gandalf the Savior. Gandalf the Savior defeated the evil king. Okay. Bear the palm. Bring joyful news. Lose a game. Advocate to be a winner. Bear the palm. Think. Every person should know their own dash, what their skill set is, and how unique their specialties. The manager told her that she should be a bit more careful while executing आएगा. A loud appeal or demand, protest, entourage, clamor, gambit. I think protest. No spelling error. Accident ये तो ठीक है. Screeched. Hysterically. He said, let us wait for the award. He proposed that let us wait. They should wait for the award. They should wait. Okay. Humble का antonym arrogant. During my Goa tour, I had visited beaches in Vasco Bagan. I visited. Okay. The country's rapid dash has led to rise in many people's growth. Although gardening is a laborious job, but it gives boundless strenuous happiness and immense satisfaction and alike. Facile activity. Laborious का facile होगा ना? नहीं, laborious का strenuous बनेगा. एक मिनट यार. Laborious job, थकाऊ काम है, तो facile ही बनेगा, I think. Correctly spelled. Frisk. Reply, rusk, foliage. Incorrectly, frisk है. They supplied the required human resource. They supplied effortlessly. बस और क्या. The celebrity was inundated with birthday wishes from his admirers. Was inundated, overwhelmed.
एंटोनिम डिस्पैच, डिस्पैच का एंटोनिम होता है डायरी, डिस्पैच, एक्वायर, ठीक है ना। Lena said that his relatives were landing the next day. Lena said, my relatives are landing tomorrow. Landing tomorrow, ठीक है। Okay, education dash both the teaching and learning of knowledge, proper conduct and technical competency encompasses 8-10 dash on the cultivation of skills, focuses as well as mental, moral and aesthetic development. Formal education consists of systematic instruction, teaching and training by dash teacher, professional teachers. This consists of application of pedagogy and the development of curricula. The right to education is a dash human right, fundamental human right. Education systems are established to provide education and dash often for children and the young. Provide education and training I think training आएगा। ओके, सबमिट करते हैं टेस्ट को। ओके, 25 क्वेश्चन किए, ठीक है, सबमिट। हाँ, पूरा का पूरा टेस्ट खराब हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाता है काम। सो आई होप 40 से वो रहेगा स्कोर। 47.5, इसका मतलब एक क्वेश्चन गलत हुआ है। सो ठीक है, चल के देखते हैं। 47.5, ओके, इसमें लगी 5.5 मिनट। सो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस किए गए हैं। ओके, सो इंग्लिश ये ठीक है, 20 सेकंड में किया था। सो इसमें क्या है ना कि ऑर्डर का आपको मैंने पहले बता रखा था ऑर्डर को कैसे करना है, ठीक है। सो पेन को लेते हैं। ऑर्डर में क्या होता है कि आपको ये देखना है कि है कैसी। पहले शालिनी के बारे में बात हो रही है, उसके बाद में यहाँ पे है कि शालिनी ने जो है मार्केट प्लेस से खरीदा, उसकी फ्रेंड ने खरीदा, लेकिन उसकी फ्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, वो यहाँ पे दी गई है। उसकी फ्रेंड आई, उसके बाद वो मार्केट प्लेस में गए और मार्केट प्लेस जो है वो लोगों से भरी हुई थी, और उसके बाद में ये, यानी कि पहले ए आएगा फिर सी आएगा। सी, ए और सी के बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे ए सी है तो अकेला यही आंसर जो है ये बनता है, यही लगा दिया और आगे बढ़ गए, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद कट अप और फिगर, इसका लिटिल मीनिंग पहले समझो। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कि भाई कुछ भी ऐसे कुछ भी बना दिया, ठीक है। इसका मतलब पोअर फिगर अगर आप सामने बना के दे रहे हो ना, यानी इंप्रेशन आपका जो है वो रॉन्ग जा रहा है, रॉन्ग इंप्रेशन आप किसी पे दे रहे हो, एक अपना जो इंप्रेशन है वो आपने गंदा क्रिएट किया है, इसका सिंपल सा ये मतलब होता है। सो मैंने 6 सेकंड में लगाया था। उसके बाद यहाँ पे भी सेम है, ऑर्डर की बात जब आती है तो इसमें क्या था, ये वाला ना बल्कि पहले दूसरों से इजी रहता है, क्योंकि इसमें लाइन टू लाइन देखना होता है और कई बार वर्ब्स, कई बार दूसरी चीज़ें ना काम कर देती हैं। स्टडी एक्सप्लोर्ड फॉरवर्ड थिंकिंग टेक्निक्स टू सिंक्रोनाइज टाइम ऑन बोर्ड डीप स्पेस प्रोब्स फॉर एक्यूरेट नेविगेशन डैश इन पर्टिकुलर लुकिंग इन लो कॉस्ट ऑप्शंस। सो ये काफ़ी इजी था, 24 सेकंड में हो गया। एंड 73 ने पता नहीं कैसे करेक्ट किया है, बाकी 27% ने गलती कहाँ की, ये 53% लोगों ने गलती की है। सो द इंडेंचर्ड, यहाँ पे क्या होता है ना कि देखो, जब ये होता है ना, इस जो यहाँ पे होगा इसके हिसाब से ये वर्ब जो है ये चेंज होगी। यहाँ पे फिक्स है, अगर यहाँ पे होता फिक्स्ड, फिर हमारा आंसर जो होता ना वो होता बी, लेकिन अभी यहाँ तो फिक्स है। फिक्स का मतलब है कि ये प्रेजेंट में चल रहा है, यानी कि
आर फिक्स्ड आएगा। और रोड्स की बात है, रोड्स प्लूरल में दे रखा है तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे इज या आर आता है, यानी कि यहाँ पे अगर रोड्स आ रहा है यहाँ पे आर है, यहाँ पे रोड अगर आता तो यहाँ पे इस हो जाता। ठीक है, ये सारा रहता है। आर फिक्स्ड बाई इंडेंचर्ड लेबरर्स, बाकी ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसका करवा ही देते हैं एक बार। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है, इसका मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लस में ऑब्जेक्ट दे रखा है ना तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आएगा, इज प्लस वर्ब की थर्ड आएगी। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे आर आएगा प्लस वर्ब की थर्ड आएगी, बाई आएगा और प्लस में जो है सब्जेक्ट आएगा। ओके, सो ऐसे फॉर्मेशन बनती है। ऐसे ही जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाज या फिर वर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सब्जेक्ट, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट यहाँ पे लगा, बाई एंड सब्जेक्ट लगता है। ओके, इस तरह से चलती है। जब वो आते हैं क्या नाम, कॉन्टिन्यूस में आते हैं, जैसे इज प्लेइंग है तो इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज, उसके बाद बीइंग, उसके बाद फिर प्लेड। तो ये आप कोई भी ग्रामर की कोई वीडियो देखोगे ना, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो बेटर वॉच एनी वीडियो ऑन यूट्यूब। ओके, ये चला ही गया एक बार। ओके, सो नेक्स्ट को करते हैं हम लोग, ये वाला हो गया इविल किंग। सो सेम है इविल किंग वाला भी। सो इविल किंग वाज डिफीटेड बाय गैंडल्फ द सेवियर। इसमें सीधी सी बात है, इसको पूरे को लिया गया है, जो ये है ना गैंडल्फ द सेवियर, इसको कंप्लीट को एक साथ लिया गया। सो गैंडल्फ द सेवियर एक तरफ आ जाएगा, ये भी है, ये भी है इनमें, लेकिन यहाँ पे वॉज है, वॉज प्लस थर्ड है, इसका मतलब गैंडल्फ ने डिफीट किया। सो डिफीटेड, जो डिफीट की जो सेकंड फॉर्म बनती है वो आएगा। सो गैंडल्फ द सेवियर डिफीटेड है, डिफीटेड द इविल किंग, द सेवियर ऑफ गैंडल्फ, ये नहीं होगा। हैड डिफीटेड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वाज डिफीटेड है। अगर हैड बीन डिफीटेड होता तब ये आंसर बनता। यहाँ पे डिफीट है, अगर इज डिफीटेड होता तब यहाँ पे डिफीट आंसर बनता। सो बच गया ये, इसको टिक करो और आगे बढ़ो। सो उसके बाद नेक्स्ट बियर द पाम, इसका मैं 10 सेकंड में लगाया था और ये 59% लोगों ने गलत कर रखा है। ये इस तरह से लगाया था कि भाई, मतलब ये पता नहीं तो मैंने कहाँ पढ़ा था, पता नहीं, एक बार मैंने इसकी गलती की थी, उसके बाद से मुझे याद है कि विक्ट्री शो करना या विक्ट्री को रिप्रेजेंट करना है जो वो बियर द पाम होता है। सो कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेंगी, आप सिर्फ अकेले लिटरल मीनिंग पे नहीं चल सकते हो, थोड़ा बहुत गेसिंग भी चल जाती है कई बार कुछ चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी हो याद हो जाती हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है सारा काम। सो नेक्स्ट, एवरी पर्सन शुड नो देयर ओन। ओके, यहाँ पे देखो, एवरी पर्सन शुड नो देयर ओन डैश व्हाट देयर स्किल सेट। यहाँ पे बात हो रही है स्किल सेट की, ठीक है। तो यहाँ पे कैलमिटीज का कोई मतलब नहीं बनता, पंक्चुअलिटीज का कोई मतलब नहीं बनता, फैकल्टीज का कोई मतलब नहीं बनता, स्पेशलिटीज जो है वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए, सबका नहीं तो कम से कम एक दो का तो होना ही चाहिए, तभी आप इस तरह की चीज़ों को जो है वो टिक कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे इसका मुझे मीनिंग नहीं पता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आ गया स्पेशलिटीज़, 10 सेकंड में आंसर लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें 47% लोगों ने गलती की है, ये भी सिंपल है। द मैनेजर टोल्ड, ठीक है, हर दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल वाइल, वाहिल के बाद क्या आता है, जीरंड आता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी फॉलो करता है वाइल को, ठीक है। जैसे आवाज, जैसे आई रेन वेरी फास्ट वाइल ब्रीदिंग हैवीली, ठीक है, तेजी सांस लेते हुए मैं दौड़ा या मैं दौड़ रहा था, इस तरह। तो वाइल के बाद जीरंड आता है, तो यहाँ पे आएगा केयरफुल वाइल एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी। सो इजी था, 8 सेकंड में इसका आंसर लगाया था। सो नेक्स्ट थिंग, अलाउड, हाँ ये गलत हो गया, एक क्वेश्चन है जो ये गलत हुआ 12 सेकंड में। अलाउड, अपील और डिमांड, इसको क्या बोलते हैं, एंटरेज,
क्लाइमर बोलते हैं। ओके, इसको याद कर लिया जाएगा। वैसे भी इसमें 79% लोगों ने गलतियां कर रखी हैं, सो आई एम नॉट द ओनली वन हियर। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें स्पेलिंग की बात थी, तो स्पेलिंग आपको दिख रही होगी। जो मेन स्पेलिंग है वो देख लिया करो। जैसे स्क्रीच्ड मैंने देखा, पहले मैंने एक्सीडेंट देखा, एक्सीडेंट सब में सेम है, स्क्रीच सब में सेम है। फिर हिस्टैरिकली, तो यहाँ पे जो आई वाला ये नहीं होगा, सिंपल सी बात है। CA अकेले L वाई वाला ये भी नहीं होगा, डबल LY लेकिन इसमें डबल E आ रखा ये भी नहीं। तो हिस्टैरिकली यानी डरावने रूप से, भयानक रूप से, इस तरह से, ठीक है। सो ओके, उसके बाद नेक्स्ट, लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। और इसमें तो बेसिक है, सबको पता होता है। सो जो लेट अस है ना, जो लेट अस है वो बदलता है किसमें, वी शुड में। वी शुड डू दिस, वी शुड टच दिस। जैसे लेट मी गो, सो इसका होगा आई शुड गो, ठीक है। आई शुड, ये L है, आई शुड गो, इस तरह से ऐसे बनते हैं। सो जैसे आई सेड लेट मी गो, आई सेड दैट आई शुड गो, और मतलब इस तरह से खोलेंगे। सो ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, हम अवार्ड के लिए इंतजार करते हैं। सो ही नॉट ओनली जस्ट सेड, ठीक है ना, ही प्रपोज्ड इट। सो दैट्स व्हाई ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। पहले वाला मैंने आंसर लगाया था 12 सेकेंड्स। एवरेज इसमें कितना, 2 घंटे, क्या है ये चलो, 33% लोगों ने इसका रॉन्ग आंसर दिया था। ओके, एंटोनिम ऑफ हम्बल, ये तो सबको पता है। डिसऑनर का होता है बेइज्जती, पता है आपको। प्लीजेंट्री यानी जो खुशनुमा, मॉडस्ट यानी विनम्र, एरोगेंट यानी घमंडी। सो हम्बल का जो है मॉडस्ट तो बनेगा सिनोनिम एंड एरोगेंट बनेगा एंटोनिम, राइट। सो इसमें भी कुछ लोगों ने गलतियां की हैं, 16% लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट, सो देखो, जब कोई इस तरह की बातें आए ना कि ड्यूरिंग माई गोवा टूर आई हैड विजिटेड बीचेस एंड इतना इतना, तो इसमें सिंपल, इस तरह की चीज़ों में सिंपल ही आप पास्ट जो है इंडेफिनिट को लिया करो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, यानी कि सिंपल पास्ट। काफ़ी बार ये फॉलो किया जाता है, लास्ट ईयर वगैरह, ठीक है, लास्ट ईयर या फिर लास्ट मंथ, इस तरह फॉलो किया जाता है। ड्यूरिंग माई गोवा टूर आई हैड विजिटेड बीचेस इन वास्को बागा एंड वागाटोर लास्ट ईयर। ऐसा आ जाए तो सीधा सा यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट चिपका देना है और कुछ नहीं। वैसे भी यहाँ पे हैड विजिटेड की जगह विजिटेड ओनली, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और सिंपल सेंस में तो ग्रामेटिकली ये ठीक है देखा जाए तो, लेकिन एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ और लाइंस होती, कुछ और पैराग्राफ होते, कुछ इसे पता लगता कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट की बात है, तब जाके हम इसको करेक्ट मानते, नहीं तो ये सिंपल पास्ट के हिसाब से फॉलो होगा। 15 सेकेंड्स एंड 38% लोगों ने इसको गलत टिक किया था। ओके, यहाँ देखो, द कंट्रीज रैपिड डैश, कंट्रीज रैपिड आइडिया नहीं भाई, फैलता हुआ कोई विचार नहीं सूट करता यहाँ पे। फैलती हुई लाइफ, कंट्री की कौन सी फैलती हुई लाइफ होती है, कंट्री का कोई फैलता हुआ ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दिखता। ग्रोथ, बढ़ती हुई फैलती हुई ग्रोथ होती है, ठीक है, ये वर्ड है जो अप्रोप्रिएट बैठता है। 9 सेकेंड्स, और इस पे मुझे डाउट है, यहाँ पे 11% लोगों ने गलती क्या कर दी। एंटोनिम बताना है लेबोरियस का। सो लेबोरियस यानी जहाँ तक मैं समझता हूँ मेहनत कशी जॉब या मेहनत वाली जॉब, एंड फसाइल एक्टिविटी यानी खुशनुमा जॉब, अच्छी वाली जो खुशी देती हो। सो 55% लोगों ने यहाँ पे गलतियाँ की हैं, ठीक है। सो ह्यूज नंबर है इसमें, ज़्यादातर गलतियाँ होती इस तरह के क्वेश्चंस में है। सो नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड, रिप्लाई ठीक है, रस्क ठीक है, फोलिएज भी ठीक है। फ्रिस्क की स्पेलिंग जो है वो होती है, बस W हटा दो, फ्रिस्क। फ्रिस्क का मतलब आपको पता है क्या होता है, जैसे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम में हमारी
तलाशी वगैरह ली जाती है उसको फ्रिस्किंग बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक ही लगता है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हैवी नहीं आ सकता, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। जो ये है ना एफर्टलेसली, ये एक क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एडवर्ब, एडवर्ब बोलते हैं। सो सप्लाइड एफर्टलेसली, ठीक है, यही काम करेगा, बाकी ये नहीं करेंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएंगे। सो एफर्ट फॉल्टलेसली अकेला ऐसा जो यहाँ पे सही बैठता है। 21% लोग यहाँ गलती कर गए। चलो नेक्स्ट, द सेलिब्रिटी वॉज इनंडेटेड। ये कॉमन सेंस से किया जा सकता था, यहाँ पे 41% लोग मिस्टेक में हैं। एनॉयड हो सकता है, लेकिन फिर यहाँ पे हिज एडमायरर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिज फैंस या फिर विशेस फ्रॉम ऑल ओवर द नेशन या ऐसा कुछ दे देते ना, तब ऐसा कुछ हो सकता था कि भाई फ्रॉम या फिर फ्रॉम पीपल बोल सकते थे, ठीक है। अगर एडमायरर आ रहा है तो ये अच्छी चीज़ होनी चाहिए ना, तो एनॉयड नहीं आएगा। प्री ऑक्यूपाइड यहाँ सूट नहीं करता। रिवॉर्डेड, सेलिब्रिटी वॉज रिवॉर्डेड, हो सकता है रिवॉर्डेड अच्छा लगता है, लेकिन ओवरवेल्म्ड, जो इनंडेटेड है ना उसका मतलब ओवरवेल्म्ड होता है, यानी अत्यधिक खुश हो जाना, अपने को क्या बोलते हैं उसको, धन्य महसूस करना टाइप कुछ चीज़ें। अगर इसका मतलब नहीं भी पता है तो भी आप तुक्का मार सकते थे, जैसे मैंने ये मारा था, ठीक है। और यहाँ पे 41 गलती कर गए हैं। फिर 11 सेकंड में एंटोनिम डिस्पैच का, तो देखो यार डिस्पैच का जो मतलब होता है ना, जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज़ को छोड़ना, ठीक है। जैसे क्लरिकल काम में इस्तेमाल होता है, डिस्पैच का मतलब होता है कि उसको उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देना। एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना या उस चीज़ को अपने पास ले आना, मतलब वो चीज़ पास में आ जाना। ट्रांसमिट का मतलब पहुंचा देना, ठीक है, एक तरह से डिस्पैच का है ये। डिलीवर का मतलब भी पहुंचा देना। बुलेटिन का मतलब ये इससे कोई मैच नहीं करता, इसका एंटोनिम नहीं है, तो एक्वायर जो है वो सूटेबल आंसर यहाँ पे बनता है, इसलिए उसको लगा दिया। 30% लोग यहाँ मिस्टेक में है। सो नेक्स्ट 12 सेकंड में लीना सेड, ये तो बेसिक है, इसमें क्या ही बताएं, लेकिन चलो द नेक्स्ट डे दिख रहा है तो पता है भाई, जब वो उसके अंदर आएगा ना तो टुमारो हो जाएगा, ठीक है। वर लैंडिंग है, हिज रिलेटिव्स वर लैंडिंग, और यहाँ पे सेड है, इसका मतलब जब इसको कॉमे में लेंगे तो ओवर लैंडिंग की जगह आर लैंडिंग हो जाएगा। बस इन दो चीज़ों को देख लो, आर लैंडिंग को और टुमारो को, जहाँ पे हो वही सही आंसर है। सो एक बार देखो यहाँ पे, माई रिलेटिव्स लैंड टुमारो है, तो आर लैंडिंग ये है, लेकिन यहाँ पे टुडे है, यहाँ पे वर लैंडिंग है, यहाँ पे आर लैंडिंग टुमारो, तो चौथा जो है वो आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ देखो, एजुकेशन डैश बोथ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज, प्रॉपर कंडक्ट एंड टीचिंग, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। सो जो ये खाली है ना, एजुकेशन डैश बोथ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज, सो लाइक्स तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एजुकेशन के तरीके हैं। लर्निंग ऑफ नॉलेज एंड टीचिंग बोथ आर एजुकेशन, ठीक है। रिलीजेस भी गलत है, मेक्स भी गलत है, एनकम्पासेस दोनों को धारण करती है, एजुकेशन का मतलब है ये दोनों तरीके, ठीक है। इसलिए जो ये आंसर था ये यहाँ पे सूटेबल बैठता है, और इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने गलती की, 63% ने। सो नेक्स्ट को 28% ने रॉन्ग किया। इट दस डैश ऑन द कल्टिवेशन ऑफ स्किल्स, तो ये इन दोनों को एनकम्पास करती है, इसलिए ये क्या करती है, ये फोकस करती है कल्टिवेशन ऑफ स्किल्स पे, ट्रेड्स पे, प्रोफेशंस पे, एज वेल एज मेंटल, मोरल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट पे, ठीक है। इसमें मेक्स कुछ नहीं आएगा, मेक्स ऑन तो होता नहीं है, चेंजेस ऑन भी नहीं होता है, रिगार्ड्स ऑन भी नहीं, तो फोकसेस ऑन होता है,
उसके बाद तीसरा, इंस्ट्रक्शन टीचिंग एंड ट्रेनिंग बाय डैश टीचर्स। तो प्रोफेशनल टीचर्स, ये तो बेसिक्स ही है, इसमें 9% ने गलती की, यानी कि ये लगभग सब ने ठीक कर लिया था। द राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, ये तो पॉलिटी से पता आपको, 5% ने गलती की थी। प्रोवाइड एजुकेशन एंड डैश ऑफन फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एंड ट्रेनिंग, यहाँ पे 45% लोगों ने मिस्टेक की, पता नहीं कैसे की यार। जब प्रोवाइड एजुकेशन एंड कुछ है ना, तो ड्रीम्स नहीं है भाई, चैलेंजेस भी नहीं है। जब एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम, तो वो चैलेंजेस थोड़ी ना देंगे, आप ब्रिंगिंग भी नहीं देंगे, वो एजुकेशन सिस्टम का काम नहीं है, तो वो ट्रेनिंग देता है आपके फ्यूचर के लिए। सो ये था टेस्ट एंड ये थे उसके आंसर्स। समरी पे चलते हैं वापस। सो 47.5, तो ये था इम्प्रूविंग इंग्लिश का टेस्ट लेक्चर नंबर 3। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के रिजल्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दूसरे या तीसरे दिन मैं एक लाइव टेस्ट अटैम्प्ट करता हूँ। पिछले 4-5 दिन से जो है वीडियोस वो कम हो रही हैं, लेकिन अब जैसे जैसे प्री पास में आता जाएगा वैसे वैसे जो है बढ़ती जाएंगी मॉक टेस्ट की वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड एंड prepare with Shiv. Bye.